الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق الوعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعن عرباد بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. محترم حاضرین گرامی، میرے دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں صحیح منہج اور درست راہ پر گامزن کیا ہے۔ اسلام کے نام لیوا بہت سے ہیں، اسلام کے دعوے دار بہت سارے ہیں، لیکن وہ نعمتیں جو صحابہ کرام کو حاصل تھیں، منہج کی نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کی اتباع کی نعمت، وہ الحمدللہ ہمیں میسر ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہر چیز کو، ہر نئی بات کو جس کا ثبوت نہیں تھا اسے بدعت قرار دیتے ہیں اور اس سے بچنا انتہائی ضروری مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے فداکار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں سے بھی آئے ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ وہ بات ہو جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہو جو آپ کے ذریعے سے صادر ہوا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہو جسے آپ نے ثابت کی ہو۔ اللہ کے رسول کی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ خاموش رہے ہوں، آپ نے روکا نہ ہو، آپ نے منع نہ کیا ہو، تو یہ آپ کی تقریر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ اگر کوئی غلط کام آپ کی موجودگی میں ہو تو آپ کے لیے واجب تھا کہ آپ روک دیں اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلط بات ہو رہی تھی تو آپ کے لیے فرض تھا کہ آپ ٹوک دیں اس پر، آپ کے لیے خاموش رہنا جائز بھی نہیں تھا۔ اس لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی عمل ہوا ہو اور آپ نے اس کا انکار نہ کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے ہوں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی اور خلقی صفات بھی سنت میں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفات یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بدعت کہتے ہیں کہ ہر وہ نئی چیز جس کا ثبوت نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہ مل رہا ہو تو پھر ہم اسے نئی چیز قرار دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارا دین مکمل ہو گیا تو اب اس میں کوئی بھی اضافہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع ادا کر رہے ہیں اور اسی موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر لگا دی اور کہا اب دین کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ پورا ہو چکا ہے، اب دین کامل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا میں نے مکمل کر دیا ہے۔ اب جب جو چیز مکمل ہو گئی ہو اس میں کسی چیز کا اضافہ ممکن نہیں ہے، جو چیز پوری ہو گئی ہو اس میں سے کوئی چیز گھٹائی نہیں جا سکتی ہے۔ ہمارے دین کی خاصیت یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں دین کے نام پر ہم نے اخذ کی ہیں اب وہ قیامت تک رہنے والی ہیں، اس میں کوئی فرق برق نہیں ہو سکتا، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اس میں کوئی اضافہ کریں گے تو اللہ کے رسول کی پیاری سنت وہاں سے ہٹ جائے گی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی بدعت دین کے اندر آتی ہے، داخل ہوتی ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک سنت اٹھا لیتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرنے والوں کے لیے واجب ہے کہ کوئی بھی نئی چیز دین کے نام پر قبول نہ کریں۔ جیسے پہلی کی امتیں، پہلے کی نسلیں کامیاب ہوئی اللہ کے رسول کے دین کی پیروی کر کے، ویسے ہی آج کی بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے وہی رول ماڈل ہے اور کامیابی کا وہی تنہا ضامن ہے، اسی کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگرچہ راستہ کتنا بھی جو ہے لہلہاتا ہوا اور کتنا بھی سرسبز و شاداب ہمیں دکھایا جائے، دلیلوں کے مختلف چمکتے ہوئے کھول اس پر رکھتے جائیں، لیکن ہم اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بدعت اور نئی چیزوں سے بہت سختی کے ساتھ مختلف مقامات پر روکا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جو بھی اللہ کے رسول کے طور طریقے کی مخالفت کرتے ہیں
उन्हें डरते रहना चाहिए, खौफ खाना चाहिए कि कहीं अल्लाह तबारक ताला उन्हें किसी फितने में न मुब्तला कर दे, किसी बड़ी आजमाइश में न मुब्तला कर दे, और या अल्लाह तबारक ताला की जानिब से कोई दर्दनाक आजाब न उनके ऊपर आ पहुंचे। लिहाजा हमें डरना चाहिए। अगर हम दीन के नाम पर किसी जो है खुराफात के पैरवी करने वाले हैं तो हमें खौफ खाना चाहिए कि हमसे अल्लाह ताला की रहमत रूठ जाएगी, अल्लाह तबारक ताला का अज़ाब हमसे नाज़िल हो सकता है, अल्लाह हमें मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में मुब्तला कर सकता है। लिहाजा हम अल्लाह तबारक ताला के दिए हुए खालिस दीन के पैरोकार बने। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। कि जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दीन की मुखालफत करेगा और ऐसे रास्ते की पैरवी करेगा जो मोमिनों का रास्ता नहीं है, मुसलमानों की राह नहीं है। मुसलमान अल्लाह के रसूल के जमाने में सहाबे किराम थे, जो भी उस जमाने के ईमानदार लोग थे उन्हें शर्फ सहाबियत अल्लाह तबारक तआला ने अता फरमाई है। तो यहाँ गैर सबीलिल मुमिनीन जो कहा गया है कि मोमिनों के रास्ते से अगर कोई हट के कोई अमल कर रहा है तो मतलब उसका ये हुआ कि सहाबे किराम के तौर तरीके से अगर कोई हटता है तो वो कामयाब नहीं होगा और किसी और चीज की पैरवी करने लगता है, बाप दादा के रस्म और रिवाज के नाम पर, या इस बात पर कि हमारे बड़ों की जानिब से ये बातें आई हुई हैं, या हमारी कलम मुक़द्दस किताब में ये चीज तहरीर की हुई है, या हमारे दिमाग में ये चीज आती है, या अक्सरियत उसे फॉलो कर रही है। कोई भी हीला हो सकता है, कोई भी बहाना हो सकता है। अल्लाह तबारक तआला ने कहा किसी भी शुबहे की बुनियाद पर, किसी भी हीले और बहाने की बुनियाद पर अगर मोमिनों के रास्ते से कोई हटता है तो हम उसे उसी डगर पे लगा देते हैं और फिर आखिर में अंजाम ये होता है कि उसे जहन्नम में झोंक दिया जाता है और ये इंतहाई बुरा ठिकाना है। तो अल्लाह तबारक तआला ने उसकी सजा ये भी है कि जहां आदमी जाना चाहता है, जहां बहकना चाहता है, जिस खाई में भटकना चाहता है, अल्लाह तबारक तआला उसे उसके हवाले कर देता है। लिहाजा नीयत हमारी अच्छी होनी चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पैरवी और आपकी सुन्नत की इत्तिबा का जज्बा होना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हमारी इस अच्छी नीयत के एवज में हमें सीधी राह दिखाएगा, हमें हिदायत याफ्ता बनाएगा, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बनाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह के खुराफात में मुब्तला रहेंगे तो फिर अल्लाह तबारक तआला की रहमत हमसे दूर हो जाएगी। वमा काना लिमुमिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि किसी मोमिन आदमी या किसी मोमिना खातून को ये चीज जेब ही नहीं देती है कि उन्हें अल्लाह तबारक तआला का फैसला सुना दिया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता दी जाए और उसके बाद उनके लिए कोई ऑप्शन हो, उनके बाद कोई उनके लिए अख्तियार हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह का फैसला आने के बाद हमारा सर झुकना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आने के बाद हमारा सर तस्लीम खम हो जाना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने कहा ये मोमिनों और मोमिनात के लिए जेब ही नहीं देता है कि अल्लाह का फैसला आ जाए और उसके बाद आदमी दाएं बाएं देखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए और उसके बाद वो फला फला की बातें देखे और उनकी पैरवी करे, उनकी इत्तिबा करे। बहुत आसान बात है, कोई बहुत बड़ा फलसफा नहीं है जिसे समझाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत है या बहुत बड़ी बड़ी दलील की किताबों की हाजत है या आपको किसी वजह मंतिक और फलसफे की जरूरत पड़ेगी। सीधी सी बात है, अल्लाह तबारक तआला ने अपनी इताअत अपने हमारे लिए वाजिब करार दी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी हमारे लिए वाजिब करार दी है। अब इसके अलावा कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है, कोई भी किताब ऐसी नहीं है कि जिसकी पैरवी हमारे लिए वाजिब और जरूरी हो, लेकिन हम किसी की गुस्ताखी नहीं करते, किसी की वजह हकारत, किसी किताब को हकारत की नजर से नहीं देखते, सबको इज्जत देते हैं, सबको एहतराम देते हैं, हर बड़े आलिम की कद्र करते हैं
اور उनका तज़किरा हम जिक्र खैर के साथ करते हैं, लेकिन अगर कोई बात किसी की कुरान और हदीस से टकराने वाली होती है तो हम एहतराम के साथ उसे किनारे कर देते हैं, इसलिए कि न तो हमारे रब का ये हुक्म है, न हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, और न फला फला इमाम और आलिम की ये बात है कि मेरी जबान से निकली हुई बात ही बरहक है और उसकी पैरवी करनी है, बल्कि उसके लिए शर्त है कि अगर कुरान और हदीस के मुआफिक है तो उसे अख्तियार किया जाएगा, और अगर हमारी कही हुई बातें कुरान और हदीस से टकराने वाली हैं तो उसे दीवार पर मार दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कभी जो है उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु की निहायत मशहूर हदीस है, कहते हैं वअल्लमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत बलीग खुतबा दिया, निहायत ही जामे अंदाज में हमें समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलीम का मौजूदा दिया गया था, आप बातें मुख्तसर करते थे लेकिन उसमें मानी का समंदर होता था, थोड़े से अल्फाज में बहुत सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह जाते थे। आपके कहने का तरीका भी बड़ा अच्छा था, यहाँ तक कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आप बात करते थे अगर कोई आपके कलमात और हुरूफ गिनना चाहता तो वो भी गिन लेता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन निहायत ही बलीग खुतबा दिया, हसबे मामूल, और दिलों को लर्जा देने वाला खिताब किया, आंखों को बहा देने वाला खिताब किया। रावी कहते हैं कि लोग रोने लगे थे, लोगों के दिल दहशत ज़दा हो गए थे, आंखों से आंसू जारी हो गए थे, और फिर हमने कहा या किसी कहने वाले ने कहा कि औसिना या रसूल अल्लाह कअन्नहा मौइज़तु मुअद्दिन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और खिताब कीजिए, हमें और वसीयत कीजिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रुखसत होने वाला किसी को रुख है वो वसीयत कर रहा हो और कोई अहम बात बता रहा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया उसीकुम बितक़्वल्लाहि अज़्ज़ व जल, अल्लाह तबारक तआला की इताअत का मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ और इसकी ताकीद कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक तआला की बातों की इताअत करो। और अगर से यानी आपस में भी इताअत करनी है, अगर जिम्मेदार कोई बनाया गया, अगर कोई हमारा वाली बनाया गया है तो उसकी भी इताअत करनी है। आपने फरमाया कोई चाहे हबशी गुलाम भी क्यों ना हो, अगर वो मनसब दे दिया गया है तो फिर अब उसकी पैरवी करनी है, उसकी बात माननी है, अगर अल्लाह की इताअत में वो बात कही जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद आगे तंबीह करते हुए कहा कि मैं इश्मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, कि मेरे बाद जो भी जिंदा रहेगा, दुनिया से तो सबको जाना है, मैं भी अपनी वक्त पूरा इतना अपनी मुद्दत पूरी करके यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद, मेरी वफात के बाद जो लोग भी जिंदा रहेंगे फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, बहुत सारा इख्तिलाफ देखेंगे, दीन का इख्तिलाफ, दुनिया का इख्तिलाफ, समाजी इख्तिलाफ, मनसब का इख्तिलाफ, इख्तिदार का इख्तिलाफ, बहुत सारा इख्तिलाफ उन्हें नजर आएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस इख्तिलाफ में मोमिनों का रवैया क्या होना चाहिए, फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना और मेरे जो खुलफा हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, जो हिदायत याफ्ता हैं, अल्लाह तबारक तआला का जिन पर इनाम है, उनकी सुन्नतों और उनके तौर तरीके को भी लाजिम पकड़ना। गोया कि इनका किया हुआ भी हमारे लिए दलील है, इनका किया हुआ काम भी हमारे लिए सबूत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे मजीद सराहत के साथ फरमाया फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, हर नई चीज दीन के अंदर बिदात है और हर बिदात गुमराही है। एक रिवायत में है कि हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। तो बिदात ये जन्नत का रास्ता नहीं दिखाएगी, बिदात हिदायत का तरीका नहीं बताएगी, बल्कि बिदात गुमराह करने वाली होती है, बिदात भटकाने वाली होती है, बिदात जहन्नम की आग में झोंकने वाली होती है। लिहाजा इन बिदातों को पहचानने की जरूरत है। और जो लोग इधर उधर की मंतिक देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फलसफे बयान करते हैं कि नई चीज का इनकार करते हो, हालांकि तुम्हारी जिंदगी में नई चीजें बेशुमार हैं, तुम्हारा घर नया है, तुम्हारा कपड़ा नया है, तुम्हारी मस्जिद नई है, तुम्हारा माइक सिस्टम नया है, तुम्हारे तालीमी इदारों में न जाने कौन कौन सी चीजें नई हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सिर्फ बहकाने वाली बातें हैं।
हम तो ये कहते हैं कि आप जितनी नई चीजें इजाद कर सकें कीजिए, हमारा दीन तो इसकी तरजीह देता है। हमारा दीन तो ये कहता है कि बेहतर से बेहतर चीज इजाद करो, मुख्तलिफ तरह के इख्तिराआत में तुम्हारा नाम हो, तुम ऐसी सफों में तुम्हारी भीड़ हो जहां दुनिया की नई नई टेक्नोलॉजियां इजाद की जा रही हैं। हमें शिकवा तो इसी बात का है कि जहां हमें इजाद करना चाहिए था, जहां हमें नई नई चीजें पेश करनी चाहिए थी, जैसे कि हमारे अजदाद ने किया था, आज हम वहां हमारे अजय है, वहां सन्नाटा है, हमारा कोई आदमी वहां नहीं दिखाई देता है, हमारा कोई आदमी मुख्तलिफ नई नई टेक्नोलॉजियां पेश करने वाला नजर नहीं आता है। लेकिन दीन के नाम पर बेशुमार इजादात होते रहती हैं, तरह तरह की बिदातें इजाद की जा रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ इससे मना फरमाया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला की हिदायत हमारे लिए यह है कि इख्तिलाफ हो सकता है, सोच का इख्तिलाफ, फिक्र का इख्तिलाफ, समझ का मेयार मुख्तलिफ है। हमारे घरों में हमारी अपनी औलाद में इख्तिलाफ होता है, हमारे बेटों हमारी बेटियों में इख्तिलाफ होता है, हमारे दोस्तों में और हमारी बीवियों में भी इख्तिलाफ होता है। लेकिन ये इख्तिलाफ जब हो उम्मत के दरमियान तो फइन तनाज़अतुम फी शै फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह तबारक तआला ने कहा जो दीन में तुम्हारा इख्तिलाफ हो या कहीं भी इख्तिलाफ करो तो फैसले के लिए, इंसाफ के लिए, कबीले के हल के लिए अल्लाह तबारक तआला की बातों की तरफ लौट आओ, यानी कुरान की तरफ पलट आओ, अल्लाह के रसूल की कही हुई बात की तरफ चले आओ, यानी हदीस की तरफ पलट आओ और यहाँ से इंसाफ ले लो, यहाँ से फैसले ले लो। और जब यहाँ से फैसला साबित हो जाए तो फिर क्यों चरा करने की हाजत नहीं है, दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। मोमिन आदमी का सर झुक जाता है अल्लाह तबारक तआला के कलाम के आगे, और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले उम्मती का सर झुक जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आने के बाद, फिर वो इधर उधर नहीं देखता है। तो ये हमारे लिए हल का रास्ता है, ये नुस्खा है। और आज जो मिलादुल नबी के नाम पर जो बिदात इजाद की जा रही है, बहुत सारे लोग बहकाने के लिए, सीधी साधी घोड़ीधारी आवाम को भड़काने के लिए मुख्तलिफ हीले लाते हैं, मुख्तलिफ शुबहात लाते हैं। ये दलीलें नहीं होती हैं बल्कि उनका शुबहा होता है, क्योंकि दलील है ही नहीं। अगर दलील होती तो सबसे पहले दलील सहाबा किराम को मिलती, अगर दलील होती तो सबसे पहले खुलफाए राशिदीन को मिलती, अगर दलील होती तो कर्ने अव्वल वालों को ये दलील सबसे पहले मिलती, अगर दलील होती तो अइम्मा अरबा को ये दलील मिलती, इमाम अबू हनीफा को मिलती, इमाम शाफी को मिलती, इमाम अहमद बिन हंबल को मिलती, इमाम मालिक वगैरह को मिलती। बहुत सारे अइम्मे किराम जो दीन की बारीकियां जानते थे, जिन्होंने दीन की बारीकियां हमें सलीके से सिखाई है, बताई है, उनकी नजरों में ये दलील कहीं नहीं गुजरी। लोग बहुत बाद में कई सदियां गुजरने के बाद दलील के नाम पर शुबहात पेश करते हैं। एक शुबहा ये लाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में जो लोग भी शामिल थे, अल्लाह तबारक तआला ने उन पर एहसान किया। वो दलील क्या है उनकी, या शुबहा क्या है? शुबहा यह है कि आपके एक चचा थे अबू लहब। अबू लहब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के जानी दुश्मन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने पत्थर बरसाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने तोहमतें लगाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने जलील और रुसवा करने की कोशिश की। अल्लाह तबारक तआला ने लानत कुरान पाक में भेजी और तब्बत यदा अबी लहब कहकर हमेशा के लिए उसे मलऊन और लानती करार दिया है। लोग कहते हैं कि जब ये मर गया तो इसके मरने के बाद किसी आदमी ने ख्वाब में देखा और अबू लहब से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, कैसे तुम यहाँ हो, दुनिया की जिंदगी छोड़कर और आखिरत या बरकत की जिंदगी में आए हो, तो तुम्हारा हाल क्या है? तब उसने कहा कि बहुत बेहाल हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत अजाब में मुब्तला हूँ, लेकिन बस मेरी एक जो लौंडी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में मैंने उसे आजाद किया था, लिहाजा उसी के एवज में अल्लाह तबारक तआला थोड़ा सा पानी मुझे पिला दिया करता है। तो वो ये कहते हैं कि देखिए अबू लहब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में लौंडी आजाद करने में फायदा पहुंचाया है, तो हम भी खुशी मनाते हैं। अब ये कोई दलील नहीं थी। पहली बात तो ये मुख्तलिफ वजूहात से उलमा ने इसे रद्द करार दिया है और कहा कि जो है पहली बात तो यह है कि अबू लहब का
आराम पाना अबू लहब का कि एक लम्हे के लिए भी, एक पल या एक साथ के लिए भी उसे पानी पिलाया जाना, ये कुरान पाक के नस के खिलाफ है। अल्लाह तबारक तआला ने उसे मलऊन करार दिया। अल्लाह तबारक तआला ने कहा उसके हाथ टूट जाए, वो हलाके बर्बाद हो जाए। अल्लाह तबारक तआला ने कहा उसकी नस्ल खत्म हो जाए और वो दर्दनाक आजाब में मुब्तला रहने वाला है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसे राहत मिलेगी? और दूसरी बात यह है कि अल्लाह किसी का ख्वाब दीन नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल ख्वाब में देखें या कोई नबी और रसूल कोई चीज ख्वाब में देखे तो वो सबूत है, वो दलील है, वो हुज्जत बन सकती है, लेकिन बल्कि वो हुज्जत है। अंबियाए कराम का ख्वाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब हमारे लिए दलील है, लेकिन हमारा और आपका देखा हुआ ख्वाब दीन में दलील नहीं बन सकता है। कोई आदमी आके बयान करे कि मौलाना साहब मैंने आज फला ख्वाब देखा है, लिहाजा अब ये जानता होना चाहिए, अब ये वसूल होना चाहिए क्योंकि मैंने ख्वाब देखा है। तो कोई ख्वाब से दलील साबित नहीं होती है, ख्वाब से दीन नहीं बन सकता है। दीन वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। किसी का ख्वाब कैसा भी हो वो दलील और नस का मुकाबला नहीं कर सकता है। और तीसरी चीज ये है कि ये बल्कि सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था कि ये जो रिवायत बयान की जाती है ये रिवायत साबित ही नहीं है, ये रिवायत ही गलत है, ये रिवायत ही ज़ईफ़ और मौजूद है। इसका कोई सबूत नहीं है कि ऐसा हुआ था, और अगर ऐसा हुआ भी हो तो जाहिर है किसी का ख्वाब हुज्जत और दलील नहीं बन सकता है, बल्कि हमारा कुरान ये हुज्जत है, हमारे रसूल का फरमान ये दलील है। एक दलील सुबह ये भी लाया जाता है, कहते हैं अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में ये फरमाया है कि आप कह दीजिए कि अल्लाह का जब फजल हो, अल्लाह का करम हो, अल्लाह की रहमत नाज़िल हो तो उस पर तुम्हें खुश होना चाहिए। तो अब अल्लाह तबारक तआला ने हम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर हम पर करम किया, हम पर फजल किया, लिहाजा हम खुश होते हैं। देखिए कहां से कहां ये लोग निशाना फिट करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इस आयत से पहले है ही नहीं। इस आयत से पहले अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक के नुज़ूल का तज़किरा किया है। तो मालूम ये हुआ, पस मंजर इसका ये है कि खुशी हमें इस बात की होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें किताब हिदायत दी है, अल्लाह तबारक तआला ने हमें कुरान पाक अता फरमाया है। और दूसरी बात ये कि फरिहा का मतलब होता है खुशी महसूस करना। अल्लाह तबारक तआला ने जब फलयफ़रहू कहा खुशी महसूस कीजिए, तो खुशी महसूस करना ये अलग चीज है, और खुशी का ऐलान करना, खुशी का दिखावा करना, खुशी का जश्न मनाना, पंडाल लगाना और मुख्तलिफ तरीके से अपनी खुशी की नुमाइश करना, इसकी दलील नहीं मौजूद है, जिसका कोई सबूत नहीं है। और खुशी एक बार होती है जब हमारे और आपके घरों पर विलादत होती है, चाहे कोई लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, अगर सही सलामत विलादत होती है तो हम खुशी मनाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है, हम अकीका करते हैं, अपने चाहने वालों को जमा करते हैं, दस्तरखान पे बुलाते हैं और उन्हें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खाना खिलाते हैं। हम एक दिन खुश होते हैं, एक जिस दिन पैदाइश हुई है, अब उसको हम दलील ये बना लें कि हम ताहयात यानी क़यामत तक हम खुशी मनाते रहे। अगर फला तारीख को हमारे घर विलादत हुई है, हमारे घर लड़का पैदा हुआ है, तो हम हर साल जश्न मनाएंगे, हर साल खुशी मनाएंगे, इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है। ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बर्थडे मनाने का कोई सबूत नहीं है। हाँ, एक दिन आप खुश हो लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आपके घराने वालों को खुशी हुई, लेकिन अब ये कि उसे हर साल हम दलील के तौर पर अखद करें, इसका कोई सबूत नहीं है। और हम पढ़ के लेते, हमें सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान हिदायत और किताब हिदायत के नुज़ूल पर हम बेपनाह खुश हैं। हम अल्लाह तबारक तआला के इस इनाम पर बेपनाह मसरत महसूस करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के पाबंद हैं। अब अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिन की खुशी नहीं मनाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम ने जश्न नहीं मनाया है, तो हम भी नहीं मनाएंगे। अगली चीज ये है, वो लोग ये कहते हैं ये सब दलीलें नहीं है, ये उनके शुबहात हैं और दूर की कौड़ी लेकर आते हैं।
जैसे कहा जाता है कि डूबते हुए शख्स के लिए तिनके का सहारा, तो ये तिनके का सहारा लेते हैं। दोनों दलीलों में कोई हैसियत नहीं, दोनों शुबहात में कोई हैसियत नहीं है, उसमें कोई वजन नहीं है। अब आगे जो तीसरा शुबहा लोग लाते हैं, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट ज़बह किए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अय्याम कितने हैं? 63 साल हैं। आप 63 बरस जिंदा रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की जो जिंदगी आपको मिली 63 साल, तो ये कहते हैं कि 63 ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बह किए थे, अपने हाथ से ज़बह किए थे। और वो सिर्फ 63 नहीं है, पहली बात ये कि 63 नहीं है, हज्जतुल वदा के मौके पर आप रसूल ने 100 ऊंट ज़बह किए थे, अपने हाथों से 63 ऊंट ज़बह किए, और बाकी सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ज़बह किया था। तो अब इन्होंने क्या किया कि जब 63 का नाम आया तो कहा 63 साल जिंदगी थी, तो उसको मीलाद से जोड़ दिया और कहा देखिए हर साल के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट ज़बह फरमाए थे। तो ये बात आप समझे हैं, ये बात 13 सदियों गुजरने के बाद आपके समझ में आई है। इससे पहले असलाफ़े किराम के सामने ये चीज नहीं थी, सहाबे किराम नहीं जानते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था। आप ही सबसे बड़े जो है कश्शाफ और सबसे बड़े जो है खबीर हो गए कि आप ही को अल्लाह तबारक तआला ने ये सूझबूझ दी और आपने यहाँ से दलील अखज़ की है, इसका भी कोई सबूत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट ज़बह किए थे और ज़बह भी कब किए थे? अब ये भी देखिए, ज़बह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हिज्जा में किया था, 10वीं तारीख को किया था, हज के मौके पर किया था, हज्जतुल वदा के टाइम किया था। आप कब खुशियां मनाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वो दिन नहीं था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट अपनी पैदाइश के दिन ज़बह किया, 9 रबीउल अव्वल या 10 रबीउल अव्वल या 3 के दिन ज़बह किया। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का एक शरीरा है, हज का एक रुकन है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमा रहे थे। तो अगर आपको खुशी मनानी है, आपको दावतें खिलानी है, आपको जो है जश्न मनाना है, तो आप 10 ज़ुल्हिज्जा को कीजिए। आप रबीउल अव्वल की तारीख कहां से लेकर आते हैं? मेरे भाइयों और दोस्तों, तो यही सब उनके शुबहात हैं, यही हुज्जतें हैं जिनके जरिए से वो लोगों को गुमराह करते हैं। मदीना मुनव्वरा में बहुत सारे लोग जिन्हें सूरह फातिहा तक पढ़ना नहीं आता था, वो ये आयत याद करके जाते थे, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। हमने कहा ये बात, ये आयत तुमसे याद किसने कराई? तुम्हें तो सबसे पहले सूरह फातिहा याद कराना चाहिए, इसलिए कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है। लेकिन सूरह फातिहा में लहने जली के शिकार थे, सूरह फातिहा कायदे से याद नहीं है, लेकिन झगड़े वाली आयत याद करके जाते थे और ये हमारे सामने पेश करते थे कि देखो अल्लाह ताला ने कहा है खुशियां मनाओ। हम कहते थे तर्जुमा गलत है, खुशियां मनाने का हुक्म नहीं है, जश्न दिखाने का हुक्म नहीं है। आप खुशी महसूस कीजिए अपने दिल में, ये मतलब ये इसका ताल्लुक दिल से है, फरिहा का मतलब खुशी महसूस करना है। तो बहरहाल उनकी ये हुज्जतें और इनकी दलीलें, और एक दूसरे नाहिए से याद गौर कीजिए कि जो 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे जो बुजुर्गान हैं, हमारे जो उम्र रसीदा लोग हैं, वो जानते होंगे कि ये 12 रबीउल जश्न मिलादुल नबी के नाम पर मनाया ही नहीं जाता था। 1935 में सबसे पहले बर्रे सगीर में ये चीज आई हुई, ये बिदात आई है। 1935 में लाहौर में सबसे पहले इसका जश्न मनाया गया था, लेकिन ये 12 वफात के नाम से ये जश्न मनाया जाता था। जब लोगों ने याद दिलाया, कहा वफात के दिन तुम्हारा जश्न हो रहा है, और वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर खुशियां मनाई जा रही हैं, शरबत पिलाए जा रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के दिन, जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले सोगवार हो गए थे, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जो बैठा था खड़े होने की ताकत नहीं रखता था, जो खड़ा था वो बैठने की जसारत उसके अंदर नहीं थी, जहां जो था वो साकित हो गया था और पूरे मदीने से सन्नाटा तारी हो गया था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई पर कहा, वाह अबता, हाय मेरे अब्बू जान, अल्लाह ने निदा दी और आप चले गए हमें छोड़कर। अल्लाह तबारक तआला ने बुलाया और आप हमें छोड़कर यहाँ से दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का दम इतना था, सहाबे किराम कहते हैं
कि जब कोई तकलीफ में मुब्तला होता, जब किसी पर कोई आफत आती थी, तो हम तसल्ली दिलाने के लिए, दिलासा दिलाने के लिए अपने भाई के पास जाते थे और बैठते थे और कहते थे ये एकदम हल्का है। याद करो वो दिन जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी, वो कितना बोझल दिन था और कितनी बड़ी मुसीबत हमारे लिए थी। जब उन्हें ये सारी चीजें बताई गई, तब उन्होंने नाम बदल दिया और कहा नहीं, ये हम 12 वफात नहीं बल्कि ये जश्न मिलादुन नबी है। अब नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तारीख बदलेगी नहीं। इसमें मैं ये बात कराहत के साथ कह दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख में लंबा चौड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन जो मुहक्किकीन ने जिन्होंने तकवीम को मुकम्मल तौर पर संभाला है, उन्होंने ये बात लिखी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से बात साबित हुई कि मैं यौमुल इत्नीन के दिन पैदा किया गया हूँ, यानी पीर के दिन मेरी पैदाइश हुई है। तो उसमें कोई शक नहीं रह जाता है, कोई शुबह नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए, बल्कि उस दिन आप रोजे का भी एहतमाम करते थे, जुमेरात के दिन रोजे का एहतमाम करते थे, तो उसमें कोई शुबह नहीं। अब उलमाए किराम ने आमुल फील के दिन देखा, आमुल फील के साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, गोया कि साल भी तय हो गया और दिन भी तय हो गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से दिन तय हुआ है। तो अब 10 आमुल फील के साल पीर का दिन किन किन तारीखों में आया, जब इसकी तहकीक हुई तो पता चला कि उस साल जिस साल आपकी पैदाइश हुई है, पीर का दिन 12 तारीख को आया ही नहीं था, बल्कि 9 तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन, यानी 9 तारीख आई थी पीर के दिन। तो पीर के दिन की जो है राजिह कौल के मुताबिक उलमा ने तयीन की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पीर के दिन आमुल फील के साथ 9 रबीउल अव्वल को हुई। और जो वफात है, वफात के बारे में भी उलमा के मुख्तलिफ अखबार में राजिह बात यही है कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। अब वफात के दिन जश्न नहीं मना सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों पर जिस दिन मुसीबत टूटी थी और जो है क़यामत सुगरा आई थी, उस दिन सहाबे किराम दिलबर्दाश्ता हो गए थे, गमज़दा हो गए थे, बल्कि बहुत से जलीलुल क़द्र सहाबे किराम भी अपना होश व हवास खो बैठे थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, आप जानते हैं कि जब खबर मिली, लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है, इन्होंने तलवार निकाल ली, कहा कि वफात नहीं हुई है, अगर किसी की ज़बान से गुस्ताखाना कलमे सुनूंगा तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हमारे नबी हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही आसमान पे चले गए हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठा लिए गए, वो हमारे दरमियान आएंगे। इस तरह की बात थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि नायब रसूल होने वाले थे, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन बनने वाले थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे के मुताबिक उन्होंने अपने आप को संभाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, चादर हटाई, आपकी पेशानी को बोसा दिया और उसके बाद कहा कि तिब्ता, आप जिंदगी में भी जो है बाइसे सईद रहे हैं और मरने के बाद भी हमारे लिए बाइसे सआदत है, और आपको अल्लाह तबारक ताला अब दूसरी मौत का मजा नहीं चखाएगा। फिर मिंबरे रसूल पर तशरीफ लाते हैं और उसके बाद उमर फारूक का जलाल भी देखते हैं, उनके हाथों में तलवार भी देखते हैं, सहाबे किराम की हिचकियां भी सुनते हैं, सहाबे किराम की सिस्कियां भी सुनते हैं, उनके आंखों में आंसू भी देखते हैं, मिंबर पे तशरीफ लाते हैं और निहायत ही मुदल्लल खिताब करते हैं, कहते हैं मेरी बात कान खोल कर सुन ली जाए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और बंदगी करता था तो वो जान ले कि आपका इंतकाल हो चुका है, आपकी वफात हो चुकी है, और जो अल्लाह की बंदगी करता था तो वो जान ले कि अल्लाह ताला हमेशा रहने वाला है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दलील कुरान से भी कहा, मा मुहम्मदुर इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन मात औ क़ुतिला क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रसूल हैं, जैसे बहुत सारे अंबियाए किराम आए, बहुत सारे रसूल आए और अपना मिशन पूरा करने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें वफात दे दी, ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी भी ऐसे ही जाने वाले हैं, इनकी भी वफात होने वाली है। क्या अगर इनकी वफात हो जाए या किसी गजरे में शहीद कर दिए जाए तो तुम दिल से फिर जाओगे
अल्लाह तबारक तआला की बंदगी में हट जाओगे। अल्लाह तबारक तआला की इस सराहत के बाद या इस आयत की तिलावत के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को होश आता है, तलवार फेंकते हैं, बैठ जाते हैं, अपना हाथ सर पे रख लेते हैं और उससे बात कहते हैं, अल्लाह रहम फरमाए अबू बकर पर। ये आयत तो मैं रोज पढ़ता था, लेकिन जब उनकी जबान से मैंने सुना तो ऐसा लगा कि अभी अभी ये आयत करीमा नाज़िल हो रही है। तो ये गम का मौका था, लेकिन हम खुशी में भी और गम में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के पाबंद हैं। हम मातम भी नहीं कर सकते, हम गम भी नहीं मना सकते, हम हर हाल में अल्लाह तबारक तआला के कदा व कद्र पर ईमान रखने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई हिदायत से हम चलने वाले नहीं हैं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दीन, आपके दीन पर कामयाबी की पहली शर्त यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के मुताबिक ही इबादत की जाए, बंदगी की जाए। इबादत की कबूलियत की दो शर्तें आप सुनते रहते हैं, उसे भी जहन में ताका रखिए। पहली शर्त यह है कि अल्लाह तबारक तआला के लिए इखलास होना चाहिए। आपकी बंदगी का मकसद अगर ईमानदार अपने आप को दिखाना है, आपके हज का मतलब अगर हाजी कहलाना है, आपकी परहेजगारी या आपके जो है तहज्जुद या आपकी शब बेदारी का मकसद ये है कि लोग आपको दीनदार मान लें, तो फिर आपको दुनिया में ये मकसद मिल सकता है, अल्लाह के यहाँ आपका कोई हिस्सा नहीं होगा। और दूसरी शर्त यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के मुताबिक वो इबादत की गई हो। आपका तरीका अगर जरूरी नहीं होता तो हमारे लिए आसमान से कुरान पाक उतारना ही काफी हो जाता। उसकी तशरीह के लिए, उसकी तबलीग के लिए, उसकी वजाहत के लिए, उसकी शरह के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की जरूरत ही नहीं थी। आपको भेजा ही इसलिए गया था कि आप जाके बता के आइए, आपका वो अमल अंजाम देकर आइए। आप किस तरीके से बंदगी करनी है लोगों को, मेरे बंदों को समझा के आइए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इबादत की बात करते तो कहते खुदू अन्नी मनासिकुकुम। हज के मौके पर आपने कहा मुझसे हज का तरीका सीख लो, इसलिए कि शायद मैं आइंदा साल तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा और मेरी वफात हो जाएगी, मैं अब इस तरह से तुम्हारे सामने रूबरू नहीं हो पाऊंगा, लिहाजा हज का तौर तरीका मुझसे सीखो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे हज करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़नी है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। एक सहाबी आते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी है, आपके सामने वो नमाज पढ़ रहे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की मस्जिद में नमाज है, नमाज पढ़ रहे हैं, एक सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन तरीका उन्होंने अलग रखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इबादत नहीं हुई तो आपने कहा तेरी नमाज ही नहीं हुई, कहा तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं है। इर्ज तसल्ली फइन्न कलम तुसल्ली, जा फिर से नमाज पढ़, इसलिए कि अभी तेरी नमाज हुई नहीं है। तो नमाज और बंदगी और इबादत ये नहीं है कि मनमानी की जाएगी, जब चाहेंगे खुशी मनाएंगे, जब चाहेंगे जश्न सजाएंगे, जब चाहेंगे मातम करने लगेंगे, जैसे चाहेंगे बंदगी करेंगे। अल्लाह तबारक तआला को ज्यादा इबादत की हाजत नहीं है। अल्लाह तबारक तआला क्वालिटी देखता है, अल्लाह तबारक तआला इबादत ये देखता है कि इबादत मेरे नबी के तरीके के मुताबिक हुई है कि नहीं हुई है। अगर अल्लाह के रसूल के तरीके से हट के कोई इबादत है तो अल्लाह तबारक तआला के यहाँ नाकाबिल कबूल है। अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। आमीन। बारकल्लाहु फीकुम व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम व